Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine. This is Sajjad Malik with the last lecture of preposition. At last, it is the last lecture of preposition. So you would enjoy this sentence. At last, it is going to be the last lecture on preposition. So look at that. It's just a very extensive lecture. You know, there is plenty of information in that. In fact, you simply have to make practice. You can't cram all these things. What I'm going to tell you, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप क्रैम नहीं कर सकते और रट्टा नहीं मारने की कोशिश करनी. उसको प्रैक्टिस करना है. उसकी आय के साथ जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 दफ़ा रीडिंग करेंगे और टाइम एंड अगेन उसको देखते रहेंगे, फिर जब आप बुक से जाके प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली यू विल फाइंड रिलीफ. आपको एक खुद ही रिलीफ मिलेगा और आप यू विल बी सेटिस्फाइड ओवर दैट. सबसे पहले बेटा हम देखते हैं verbs which don't take any preposition with them. ऐसे verbs जिनके कोई साथ कोई preposition नहीं आती. You may say no preposition is used after the following verbs. ये जो नीचे दिए गए ये वाला हिस्सा, आपने ये वाले हिस्से को नहीं, ये वाला हिस्सा देखे तो इस वाले हिस्से में ये जो verbs मैंने लिखे हैं, लॉन्ग लिस्ट है, इनके बाद कोई preposition नहीं आती. You simply have to remember that और इसको रिकॉल करना है, इसको लर्न करना है आपने, बट नॉट लर्न बाय हार्ट. इसको क्रैम नहीं करना, आपने इसको सीखना है. रिजेंबल, रिजेंबल होता है मुशाबियत होना. रिजेंबल के बाद बेटा कोई प्रेपोजिशन नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, शी रिजेंबल्स हर मदर. अपनी माँ से मुशाबे है, मिलती जुलती है. लव, I love my students, not love with. I love my students. My students love me too. Love me too. They too love me. Love. Don't use any preposition. Attack. Attack हो या word assault हो, शायद आगे आ जाएगा. तो इसके बाद हमला करना, इसके बाद कोई preposition नहीं होती. अमेरिका अटैक्ड अफगानिस्तान ट्वाइस. अमेरिका ने 2 दफ़ा अफगानिस्तान पे हमला किया. अटैक्ड ऑन, अटैक्ड विद, ऐसा कुछ नहीं होएगा, कोई प्रेपोजिशन नहीं. ऑर्डर, बेटा अगर ये वर्ब के तौर पे आ रहा है तो आप कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे. हाँ, अगर ये नाउन के तौर पे आ रहा है तो वर्ड फिर ऑर्डर्स यूज होगा. अगर नाउन के तौर पे आ रहा है तो फिर इसके बाद प्रेपोजिशन यूज करते हैं. आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी. आई ऑर्डर्ड अ cup of tea. The officer orders his subordinate. The officer orders his subordinate. No preposition. Obey. Will you obey me? My dear students, will you obey me? You ought to obey all your teachers. You ought to obey your parents as well. Obey. No preposition. marry. शादी करने वाला. एक ई वाला होता है, वो खुशी इंजॉयमेंट के लिए होता है. शादी वाला. a boy proposes a girl, says will you marry me? Will you marry me? Not marry with me. I don't hate anyone. I don't hate anyone. We shouldn't hate the poor people. We shouldn't hate the poor. Hate. No preposition after that. Accompany, साथ देना. Will you accompany me for some time? Will you please accompany me for some time? Afford. I don't afford an expensive car. I don't afford a big house. I don't afford a luxurious way of living. Answer. Answer. Please answer me. I am waiting for your answer. So please answer me. The student answered the teacher. Answered the teacher. Violate. खिलाफ वर्जी करना. No rule should be violated. People violate traffic rules. People
often violate rules. We often violate rules. अब इसमें सारे में देखें violate के साथ कोई preposition नहीं. Assist, किसी की मावनत करना. My dear fellows, my worthy fellows, my cameraman is gonna assist me in this painstaking job. My fellow, my worthy fellow, Hamad Sahib, assisting me. Mr. Hamad is assisting me in this painstaking job. Benefit, fayda lena. Will you take benefit? Will you take any benefit? Would you like to take benefit? Yep. They normally take benefit. They normally accept benefits. तो यहाँ पर ये बेटा ये benefit का जो word है थोड़ा सा एक controversial आ गया. इसके साथ preposition use होगी. I'm sorry बेटा, benefit from होता है. Benefit from. It ought to be in from. So benefit. It's not going to be a word. He is going to be benefited. Is going to be benefited. जब ये passive में use होगा तब इसके साथ ये passive में use होगा तो इसके साथ preposition आएगी. Active voice में इस पे preposition आएगी. तो passive voice में people are going to be benefited by the government. Nobody is going to get any kind of benefit by the government. तो अब यहाँ पर इसके साथ preposition आ रही तो ये word इसमें से आप segregate कर दे. Sign. Please sign here. Please sign these papers. Sign on नहीं. Reach. Reach के बाद बेटा कोई preposition नहीं आएगी. Reach के बाद कोई preposition नहीं आएगी. I reach home. I reach home late at night. I reach college in time. मैं reach के फौरन बाद object दूंगा, मैं इसके बाद preposition नहीं दे सकता. Will you please reach? Will you please reach in time? अब मेरे पास कोई object नहीं आया. जहां पहुंचना मैंने वो डेस्टिनेशन नहीं दी. विल यू रीच इन टाइम, तब आप कहेंगे कि यहां तो रीच आ रहा है, ये इन टाइम आ रहा है. मेरे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है. इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद मैंने इन टाइम यहाँ पे एडवर्ब यूज किया है. वो इनफैक्ट प्रेपोजिशन नहीं है, वो टाइम के साथ आगे वो एडवर्ब मैंने यूज किया है. तो आई रीच्ड लाहौर at 9:30 yesterday. So I'll reach there at 6 o'clock. Discuss. No preposition. Will you please discuss this matter with me? Would you mind if I discuss this issue with you? Request. I request you. You request me. He requests him. She requests you. Look at this. Contact. No preposition. Will you please contact me? Will you please contact me? Yep. I tried to contact you, but you are missing somewhere. I tried to contact you. Where? I tried to contact you at your place, at your phone number, at your cell phone. But you were not available. No preposition after that. Ascend. Chadhai chadna. He's ascending the mountains. On the mountains nahi aana. Ascending the high slope. On the mountain. On the high of mountain. Inform. Will you please inform me? Inform with nahi. No other preposition. Who informed you? I informed you. Will you please inform me in time? अब ये in time बाद में आया आपके ऑब्जेक्ट के. Will you inform me? me के बाद आ रहा है. So please inform me in time. Embarrass. शर्मिंदा होना. So I felt embarrassment. अगर ये noun के तौर पे आ रहा है. This thing always embarrasses me. This thing always embarrasses me.
Bad manners always embarrasses me. Bad manners always embarrass everyone. हर एक को शर्मिंदा करते हैं. Address. I'm gonna address you people. I'm going to address my students. Right now, I'm talking about preposition. I'm going addressing my students. मैं खिताब करना, ये address पते वाला नहीं है, मुखातिब होना है. So I'm addressing my students right now. I address my students normally when I teach. I address my students. Climb. So he climbed the mountain. He climbed the stairs. Describe. Will you please describe me? Describe me the whole situation? Enter. Azim enters the room. Not enter into. दिल करता है ना into लगाने को कि डायनामिक है. दिल को जरा ऐसे संभाल के रखना. यहाँ पे दिल की नहीं सुननी, दिमाग की सुननी है. एंटर के बाद कोई preposition नहीं. No preposition. Azim enters the room, not into the room. Examine. The doctor examines the patient. The officer is examining the whole situation. The teacher is examining the class. जायजा लेना, मुआयना करना. Pick. Will you please pick me? Did you pick me? यहाँ एक तो लेके जाना होता है, एक समझने के जुमरे में भी आता है. Proud. No, it's not. Probe. तहकीक करना. I'll try to probe this matter. Probe into this matter नहीं. यानी छानबीन करना. Probe होता है छानबीन करना. Probe होता है किसी के इन्वेस्टिगेट करना. Investigate. ये होता है इन्वेस्टिगेट. इसके बाद भी कोई preposition नहीं आती. The policeman is investigating the case. The officer is probing the case. I'll try to probe the reality. और तय से निकालूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रोब करूं रियलिटी को, ट्रूथ को. Resign. He resigned yesterday. Will you please resign? Will you resign your job? आप अपनी जॉब से इस्तीफा दे देंगे. अब फ्रॉम नहीं आएगा. Resign job. Resist मुज़ाहमत करना. He is resisting me. I am resisting greed. मैं लालच को resist कर रहा हूं. उसके अगेंस्ट. resist तो पहले होता है मुज़ाहमत करना किसी के अगेंस्ट. So I am resisting temptation, greed, lust, dishonesty. I am resisting bribery. तो यहां पर जो रेजिस्ट है वो मुज़ाहमत करना. बेटा ये एक दफा मैं फिर दोबारा से बोल दूं, इनके बाद आपने प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी. सबकी एग्जांपल दे दी. सो हाउ टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग. रिजेंबल मुशाबे होना, मिलता जुलता होना. लव अटैक या असॉल्ट. ऑर्डर अगर वर्ब के तौर पे आए तो फिर आपने इसके बाद प्रेपोजिशन ही लगाना. उबे, मैरी, शादी करने वाला मैरी. हेट, अकंपनी, अफोर्ड, आंसर, वायलेट, असिस्ट एंड नो बेनिफिट. साइन. Please sign here. Sign this paper, please. Sign this form. Reach home. Reach college. Reach institution. Reach destination. Reach Lahore. Reach Faisalabad. Reach Nankana. Like discuss. Request. Contact. Ascend है चढ़ाई चढ़ना. Inform.
embarrass, address, climb, describe, enter, examine, pick, investigate, probe, resign, resist. ये बेटा वो वर्ब्स है जिसके बाद आपने प्रेपोजिशन नहीं लगानी. अब मैं आपके सामने कुछ यहां पर बेटा बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज है कि किन के साथ मखसूस किस्म की प्रेपोजिशन लगनी है. ये आपके सामने वर्ब है, मैं इसको देख रहा हूं, इनके साथ ऑफ आना है. एक्यूज होता है किसी पे इल्जाम लगाना. एक्यूज ऑफ. अप्रूव होता है मंजूरी देना, मंजूर हो जाना. अप्रूव ऑफ. अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना किसी बात पे. अशेम्ड ऑफ. अवेल होता है मौका से फायदा उठाना, अपॉर्चुनिटी को अवेल करना. अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी. अवेल ऑफ. बोस्ट होता है शोए मारना, शेखियां बिगाड़ना, शोए मारना. बोस्ट ऑफ. कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होना. डिवाइड होता है डिप्राइव्ड ऑफ. तो यू मे राइट डिप्राइव्ड एज वेल. डिप्राइव्ड के साथ भी सिमिलर. डिवाइड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, हैविंग सेम मीनिंग. महरूम होना. He is devoid of many blessings. He is devoid of good health. He is deprived of honesty. He is deprived of a true and sincere friendship. He is deprived of a true friend. Jealous of, हासिद होना. Jealous. Sick of. ये जो sick है ऑफ है ना बेटा, ये होता है सिक ऑफ का मतलब बीमार होना नहीं होता, बेजार होना होता है, उकता जाना. डिस्गस्ट विद. सिक ऑफ. प्राउड ऑफ. आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स. आई एम प्राउड ऑफ यू. वेल डन बेटा. व्हेन यू बिकम सो प्लीज्ड एट एनीथिंग, यू बिकम वेरी हैप्पी ऑन एनीबॉडी, यू से आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन. आई एम प्राउड ऑफ यू माई डॉटर. इग्नोरेंट. एक तो जाहिल होता है ना, जहालत. ये वहां से ये होता है ला इल्म होना. आई एम इग्नोरेंट ऑफ द ट्रू रियलिटी. आई एम इग्नोरेंट ऑफ ट्रू रियलिटी. वट यू हैड डन बिहाइंड माई बैक, यू आर डूइंग सच सीक्रेट थिंग्स एंड आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ द रियलिटी. Oh my God, it was such an injustice with me. I was ignorant of the reality. Die of hunger, die of starvation, die of disease. यहाँ पर blind of, ये मैंने सर्कल किया है बेटा. blind of जब आएगा तो ये blind of होता है अंधे. ये आंख वाला अंधा नहीं होता. किसी हकीकत से ला इल्म होना. किसी हकीकत से ला इल्म होना. He is blind of the fact. He is blind of the reality. He is blind of the truth behind the scene. He is blind of all this situation. यानी आप किसी हकीकत को, किसी ट्रूथ को, किसी असल बात को नहीं जानते, तब ब्लाइंड ऑफ लिखते हैं. अब आगे आ जाता है बेटा, प्रेपोजिशन टू आ रही है. तो इसके बाद ये फॉलोइंग वर्ब जो है, ये इसके बाद हमेशा आपने टू जो है प्रेपोजिशन लगानी. अलाइव टू, मौका के मुताबिक होना. एप्लीकेबल टू, जो चीज किसी जगह एप्लीकेबल होती है, जो जिस जगह पर अप्लाई हो सकती है. काइंड टू, शी इज वेरी काइंड टू मी. ही इज वेरी काइंड टू मी. आई एम वेरी काइंड टू यू. सेंसिटिव टू, सेंसिटिव ऑफ नहीं होता. ही इज सेंसिटिव टू आयरॉनिक रिमार्क्स. तंजिया रिमार्क से बहुत सेंसिटिव है. सेंसिटिव टू, ही इज सेंसिटिव टू डस्ट बिकॉज ही हैज डस्ट एलर्जी. डिवोटेड, वक्फ कर देना किसी के लिए अपने आप को पूरा लगन के साथ. द वे माई स्टूडेंट्स हैव डिवोटेड themselves to their studies. Some of them you are maybe smiling, some of you are maybe laughing. सर क्या कही जा रहे हैं, हमने तो ऐसा कोई जुर्म नहीं किया. नहीं, मुझे पूरा यकीन है बेटा. You have devoted yourself to your studies. I'm very much optimistic. You have devoted yourself for your studies. Listen to me, please. Listen to me.
इंजूरियस, मुजर, खतरनाक, जिसके खतरनाक असरात होते हैं. लाइक स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. Smoking is injurious to health. Drinking is injurious to health. Hostile, khatarnak. Drinking is hostile to health. Ignorance is hostile to any society. Illiteracy is hostile to any society. Prefer to. एक बेटा बात याद रखिएगा, हर वो आपका वर्ब जो हर एक वो आपका वर्ड जो या IOR से. अब यहां पर कई चीजें आपकी वर्ब की सूरत में है, कई चीजें एडजेक्टिव की सूरत में है. अब ये तो वर्ब है, लेकिन किसी जगह पर अब ये नीचे आपके जो सामने सारे ये एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव की. यहां तक तो ये प्रिफर आ गया आपका वर्ब. यहां जो प्रायर है ये एडजेक्टिव है, सीनियर एडजेक्टिव है, इंफीरियर एडजेक्टिव है, सुपीरियर एडजेक्टिव है. यहां पर मैंने कुछ एडजेक्टिव्स भी दिए हैं अलोंग विद दीज वर्ब्स. ये वर्ब्स है. एडिक्ट टू, आदी होना. ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड टू वॉन्डरिंग. एडहियर, किसी चीज का आदी होना ना एडिक्ट टू होता है. एडहियर होता है अटैच्ड हो जाना, किसी चीज के साथ जुड़ जाना. एडहियर, एडहेरेंस टू होता है. ही इज एडहियर टू मी, ही इज एडहियर टू मी. ही थिंक्स हिमसेल्फ सुपीरियर टू एवरीवन, he takes himself superior to everyone. No one is superior to anyone. Don't take yourself inferior to anyone. You are a complete world in yourself. I am senior to you, you are junior to me. I came prior to you, you came later than me. So prior. अब ये adjectives के साथ जिसके बाद आप to लगाते हैं. At, look at this बेटा, at. अब preposition at, ये in verb, ये सारे verbs है, इस पे कोई adjective नहीं है. Aim at, निशाना लेना, निशाना लगाना. Aim at, look at this. Aim at, you are gonna shoot somebody, you take aim at somebody. Aim at, laugh at, किसी पे हंसना. Rejoice at, enjoy करना, to make merry, मजा लेना. Sneer at, बड़ा तंजिया से अंदाज में किसी को देखना, स्नीयरिंग करना, बड़ा तंजिया अंदाज. जीयर एट, ठट्ठा उड़ाना, तमस्खर उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना. नॉक एट, दरवाजा नॉक करना. इज नॉकिंग एट, हु इज नॉकिंग एट द डोर, प्लीज नॉक एट द डोर. अलार्म एट, खतरा महसूस करना, खतरा होना. स्टे एट होम, स्टे सेफ. इनफैक्ट स्टे होम ये जैसे नॉक है या स्टे है, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद आप प्रेपोजिशन ओमिट भी कर सकते हैं. जैसा कि आजकल आप पढ़ रहे हैं स्टे होम, स्टे सेफ, तो उसके लिए इनफैक्ट अगर प्रॉपर देखा जाएगा ग्रामेटिकली तो इसके बाद प्रेपोजिशन स्टे एट आता है. स्टे के बाद अलार्म एट, नॉक एट, स्टे एट, मॉक एट. क्योंकि जब आप ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं फिर आपको अलाउड नहीं है, फिर आप ऐसी लिबर्टी नहीं ले सकते. मॉक एट, किसी का मजाक उड़ाना. शूट एट, गोली मारना. लुक एट मी, प्लीज लुक एट द व्हाइट बोर्ड, प्लीज लुक एट द लेक्चर. स्टेयर एट, स्टेयर एंड गेज हैव सेम मीनिंग. स्टेयरिंग, लुक एट दिस, द वे यू आर जस्ट टिकटकी बांध के किसी चीज को देखते रहना, देखी जाना, गौर से देखना, बगौर. स्टेयर एंड गेज. ग्लेयर एट, बड़ी नाराजगी से किसी तरफ देखना, नाराजगी से देखना. ऑगल होता है, बड़ी प्यार भरी नजरों से देखना किसी को. ऑगल होता है. ऑगल एट मी प्लीज, आई एम ऑगलिंग एट यू. फ्राउन एट, गुस्से भरी गजबनाक निगाहों से किसी को देखना, त्योरी चढ़ा के, जैसे बड़ा गुस्सा आ रहा है आपको, बड़ा जब डिस्गस्टिंग कंडीशन में होता है. फ्राउन एट. अब नेक्स्ट बेटा आपकी प्रेपोजिशन है फॉर. लुक एट दिस. इसके लिए जो ये फॉलोइंग वर्ब्स हैं इनके साथ फॉर आएगा. एलिजिबल फॉर, आई एम
eligible for this post. You are eligible for this post. Hope for the best. Hope for the best. Compete for the examination. Compete for the position. Compete for the high, prestigious position. Apologize for me. Apologize for my mistake. Apologize. I beg apologize for my mistake. I apologize for my misdeeds. Famous for. He is famous for his doctoring, his lawyering, his teaching, his, eloquency, his articulacy, his writing. Look at that. Mukhtalaf art hote hain. Someone is famous for his singing, dancing, acting, teaching, speaking. You have something that is different. So Allama Iqbal was famous for his poetry, for his philosophy. Notorious, badnaam hona. Notorious for. He is notorious for his dishonesty. He is notorious for his dishonesty. Long, khaish karna, long for. Don't long for the thing which are not in your control right now, because it may lead you towards a destructive way. It may lead to you towards a wrong way. कि ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश मत करे जो आपको गुमराह करके किसी गलत रास्ते पे ले जाए. लास्ट होता है कायम रहना. लास्ट आखिरी नहीं है, इसका मतलब जो वर्ब के तौर पे आए तो कायम रहना होता है. Our relation will last till the world lasts. Our relation will last till the world lasts. एस के साथ हमारा ताल्लुक रहेगा जब तक ये दुनिया कायम रहेगी. लास्ट. The Qaid Azam's name will last till the world lasts. What he did, what has been, what God has made him to do so, that made him famous, and his fame will last forever. Qaim rehna, forever. Seek, talash karna, seek for, search for, talash karna, search for, prepare for. I'm getting prepared for the new lecture. I'm gonna get prepared for going home, going back home after these 4-1. I'm getting ready. I'm getting prepared for going home from. Alight, उतरना किसी चीज़ है, ऐसे alighting, ऐसे परवाज, आपकी ऊंची परवाज है, ये ऊंची परवाज है. फ्लाइट होता है ऊपर जाना, alight उसका इंटोनिम है. alight from, disqualified from, किसी चीज़ से आप disqualify हो रहे. He is disqualified from his service. He is disqualified as an MNA. मतलब एक Nawaz Sharif was disqualified as the Prime Minister of Pakistan. Different from. You are different from your brother. Prohibit from. सख्ती से मना होना, सख्ती से मना करना. So you should prohibit him from smoking. You should prohibit him from bad company. Differ from, इख्तलाफ रखना, किसी से इख्तलाफ रखना वगैरह. ये in. अब यहां पर एक वर्ड बेटा उतर आया था ब्लाइंड. मैंने इसका बताया हकीकत से. ये ब्लाइंड इन जो होता है, ये होता है अंधा होना. इज ब्लाइंड इन वन आई, वो काना है. इज ब्लाइंड अगर टोटल है दोनों आगे तो फिर ब्लाइंड लिखेंगे. अगर वो एक से ब्लाइंड इन तो फिर वो काने के लिए यानी वन आइट के लिए यूज किया जाता है. कंसिस्ट इन, मुश्तमिल होना. परसिस्ट इन, बजिद होना. एब्जॉर्ब्ड इन, किसी चीज में खो जाना. एक्सेल इन, सबकत ले जाना. कॉन्फाइड इन, किसी के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस रिपोज करना. इंडल्ज इन, मुलव्वस होना. लॉस्ट इन, एब्जॉर्ब हो जाना, खो जाना. बिलीव इन, बेटा ये याद रखिएगा. बिलीव इन जो होता है जब हॉली पर्सनैलिटीज की बात आती है, जब खास तौर पे वी बिलीव इन वन अल्लाह, वी बिलीव इन the holy prophet
Muhammad sallallahu alaihi wasallam